See what is happening. This is a plant. Wound is there. चलो यहाँ पे कट लग गया. Wound. Now wound secreting a lot of chemicals, phenolic chemicals, maybe acetylserine, ठीक है. एंड सेकेंड में भी शुगर. तो शुगर मिल गया एज ए कार्बन सोर्स. अब इसको क्या चाहिए, कोई बैक्टीरिया. अब यहाँ पे देयर बी कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज बैक्टीरिया. दे आर हैविंग द पाइलस हेयर्स, राइट. दे आर हैविंग द प्लाज्मिड्स. ठीक है ना. दे आर हैविंग द प्लाज्मिड्स. So now they are moving towards the wound of the plant. Wound because of these chemicals, phenolic, acetylserine, and sugars. Right? Once they are here, these bacteria are here. Then what is happening? They are entering the plant cell. Plant cell का structure बना लो. प्लांट सेल के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? बना लिया. क्या हो गया प्लांट सेल का? ठीक है. नाउ दिस इज इंसर्टिंग tDNA प्लाज्मिड इनटू द प्लांट सेल. इतना क्लियर है? तो नाउ दिस जीनोमिक इंटीग्रेशन ऑफ tDNA इनटू द plant chromosome develops or transform what? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटे? Yes sir. Now what is happening? अब ये ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रेशन हो गया. यहाँ पे किलो यूज कर लेते हैं. यहाँ पे आ गया tDNA. Now as soon as the tDNA is integrated, this is called as the transformation. Transformation. Now they are going to secrete opines. Opines में दो हैं. कौन कौन से हैं? नोपालिन और ऑप्टोपिन. ठीक है. अब जो ओपाइन्स है, दे आर एक्टिंग एज ए नाइट्रोजन सोर्स. तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? शुगर भी चाहिए और नाइट्रोजन भी चाहिए. सिमिलरली फॉर द सिंथेसिस ऑफ, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टार्ट बायोसिंथेसिस ऑफ Cytokine. not only cytokine, Oxygen. also oxygen. So this opine is used now. What is the use of this opine? This opine is used now for the biosynthetic activity of both cytokine and oxygen. इतना क्लियर हो गया? कितना अच्छे से क्लियर हुआ? Yes sir. बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ? Sir, clear हो This गया. opine Yes sir. present in few bacteria that causing the crown gall disease. ठीक है. What is the curing? Yes, sir. When you can cure the To incubate it at 42 degrees centigrade. take this crown gall, add into the flask, Incubate. incubate into the flask at 42 degree 42 degrees centigrade. Heat कर दो.
then this tumor will be free of bacteria. This is free of any agrobacteria. All the agrobacterium will be in the suspension. तो अगर इसको अब इस क्राउन गॉल को लेके अगर इन्फेक्ट करते हो किसी ट्री में या वाउंड में, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट विल हैपन. तो बच्चे जल्दी में यही जवाब देंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ओपाइन होगा, ये होगा, है ना. लेकिन आप क्या बोलोगे? प्योर हो गया ना, तो नथिंग विल हैपन. नो ट्यूमर विल बी देयर. नो ट्यूमर विल बी देयर. क्वेश्चन उल्टा सीधा ही आएगा. ऐसे नहीं कि भट्ट सर ने पढ़ा दिया आपको तो नाउ. It's only happening in laboratory, right, sir? Because in naturally, so naturally अगर होगा तो क्राउन गॉल ही तो होता है. देखो हाँ, क्योरिंग वो नेचुरल वे में थोड़ी ना हो रही है. नेचुरल वे में तो क्राउन गॉल हो रहा है. So scientists got an idea exactly that we got a automatic tool. We got a automatic tool. It's called as the tDNA. This is automatic tool for transforming plant cell. Just you have to make small changes in the tDNA, insert your gene of interest, and now automatically they are doing everything. They are inserting. You have not to make any hard work. Just to find out a ground gall, agrobacterium, modify their tDNA, and since they are automatically they are invading, they are chemotactically moving, they are itself inserting into the plant cells, they are integrating itself into the chromosomal cells, right? Now they are multiplying itself, they are creating a lot of opines. Opine is the cause of growth of any cytokine auxin. So you can replace any gene. If you don't want to keep them, you can add your gene of interest and that can be growing well. So I think you got everything well. ठीक है जी. So how crown gall disease occurring in the various plants? Tell me. How crown gall occurs in various plants by insertion of tDNA. Yes. By insertion of tDNA. क्या बोलते हैं? tDNA insertion. The plant chromosome. tDNA inserted into the plant genome. So they are very important tool in the plant breeding. They are very important tool in the plant breeding. What is the role of Vir gene? So it's Vir gene and VHC gene. They are Vir gene, Vir A, code for Vir A protein, and this is a kind of plant factor. This is a kind of plant factor. This plant factor is responsible for identifying. क्या identify करते हैं? This acetosyringen या phenolies. इसके बाद chemotoxic. ठीक है? Yes. So there are 3 genes. After that, ये clear कर दूं सारा? Yes. ठीक है ना? So once suppose this is a plant gene, and now you have inserted the tDNA. यहाँ पे आपने tDNA insert किया. Right? So this tDNA contains 3 parts. 3 genes are there. Which one 3 genes are there? Auxin के लिए IAAH, auxin के लिए
देन IAAM, ये दोनों ऑक्सीजन के लिए है कोड फॉर, ये पूछ सकता है. एंड विच इज द जीन फॉर साइटोकाइनिन? IPT gene for IPT for cytokine. cytokine. Okay. That's why they are increasing high level of, they are biosynthesizing high level of oxygen and cytokine. Okay. So this IPT gene, ये पूछा हुआ है कि which is the gene for cytokine. ठीक है ना. अब सवाल ये उठता है कि all the plants, suppose this is the plant and they are infected by this crown gall. Suppose यहाँ पे crown gall हो गया. ठीक. Bacteria have their own defense system. ठीक है. तो यहाँ पे एलिसिट होना चाहिए हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, HR रिस्पॉन्स. क्यों नहीं होता है? Why hyper sensitive response is not activated? Yes, sir. Why hypersensitive response in the plant as a defense system is not activated? Not activated. जब ये अटैक हो रहा है, क्राउन गॉल हो रही, दिस इज व्हाट? क्राउन गॉल. ये सिस्टम एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ? एक्टिवेट कब होता ये बताओ. ये पैथोजन इतना तेजी से ग्रोथ किया कि ऑल द सेल्स गॉट डेथ बिफोर द एक्टिवेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स. राइट. दे आर गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट दिस इम्यून रिस्पॉन्स. ये पूछा हुआ था. दिस इज ए defense system of the plant. Hypersensitive response is a defense system, and this is a kind of broad spectrum resistance response. Broad spectrum resistant response. Broad spectrum resistance. ये वाला तरीका ठीक है? बोर्ड वाला छोड़ दे PPT. Yes, sir. Yes, sir. Just because the colors are really illuminating. Sir. ये बढ़िया है ना? सबको पसंद आ रहा है? Yes, sir. हाँ सर. पूजा, can you introduce yourself? Everyone wants to know about you. From when you were preparing, when you started preparation, have you prepared earlier? What was the response when you appeared in the CSR exams? All that. नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं. If you want, if you are comfortable, then you can tell. Because all we are a kind of scientist, है ना? So all we are discussing at a common platform. There is no kind of teacher and student. All are teacher, all are students. I am also a student. I am learning, asking from you also, है ना? Yes, sir. And we also get one chance to teach. हाँ, team work कर रहे हैं हम actually में. Yes. Which sir has discussed yesterday. We can teach that on the like next day. Okay. तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. शायद पूजा को मेरी आवाज नहीं आ रही है. No problem. चलो. So this is hypersensitive response. We are talking broad spectrum. ये होता है, right? And also one thing is very important that you can note. This is called as the systemic acquired resistance. Systemic. What happened? Color. अच्छा समझ गई. ये कहाँ से चाहिए? चलो, what I am writing, systemic acquired
क्या लिख रहे हो? सिस्टेमिक acquired resistance. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द SAR. दिस इज कॉल्ड एज द SAR. So this response is really activated. ऐसा नहीं कि नहीं एक्टिवेट होता है. This is activated during, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, डोंट माइंड. मेरी राइटिंग बहुत ही खराब है. और दिस इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग क्राउन गॉल अटैक. What is this system? Defense system called as SAR. What is activated? SAR is Sir, activated. how does it work? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. कि इसके वर्क करने के पहले ही रिस्पॉन्स हो गया, क्राउन गॉल ने सारे टिश्यू को मार दिया. सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस तब कहते हैं कि जब ये मूव करे पूरे प्लांट में. बात समझ रहे हो? सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस की व्हेन यू आर टॉकिंग, राइट, आपने सुना भी होगा ह्यूमन में कैसे काम करता है सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. भाई आप वो मान लो कोई इन्फेक्शन हो गया, राइट, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, देन व्हाट इज हैपनिंग? एंटीबॉडी बनती है बोन मैरो में, एंड दे आर मूविंग टू द इन्फेक्टेड वाउंडेड पार्ट. ठीक है, ठीक बात है, इतना समझ गए? जो भी एंटीबॉडी बनती है, दे आर रीचिंग टू द वाउंड. तो origin production, another place, attack, another place, to remove all those infections. So it is also happening there. This is happening in the animal system. Acquired resistance यहाँ पे भी वही हो रहा है. Systemic acquired resistance is a mechanism of induced defense that confer long-lasting protection against a broad spectrum of microorganisms, and they require a special signal. प्लांट में देयर इज ए स्पेशल सिग्नल. यहाँ तो एंटीजन होता है, फ्रैगमेंटेड एंटीजन प्रेजेंटेड बाय द एमएससी. दैट्स व्हाई एंटीबॉडीज फॉर्मेशन इज देयर. देयर इज ए प्राइमरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस. ठीक है ना? तो जब आप वैक्सीन लेते हो तो दिस इज द सेम एंटीजन इवोकिंग द प्राइमरी रिस्पांस, एंड सेकेंडरी रिस्पांस बूस्टर डोज, जो कि क्या बनाता है? मेमोरी. When there is a second infections, second time infections, then memory cell is activated. ठीक है? So there is a salicylic acid which signal salicylic acid. Salicylic acid. Because of salicylic acid, this response is activated. है ना? And because of salicylic acid, this response is activated, and because of this activation, there is accumulation of pathogenesis related protein. क्या लिखोगे? Accumulation of pathogenesis related protein. ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? What is systematic acquired response? This is a kind of plant defense response that provide long-lasting, broad-spectrum pathogen resistant to uninfected systemic leaves. क्योंकि सबसे ज्यादा बर्ड और लीव्स के ही इन्फेक्टेड होने के चांसेस होते हैं. ठीक है ना? So that's plant defense response is like a antibody secondary response. लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स, छोटे टाइम के लिए नहीं है, राइट? तो हाउ दिस इज क्रिएटेड? दिस इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ signal, special signal that is called salicylic acid, which is activating this systemic acquired acid, also called as the SAR response, SAR protein. So there is accumulation of lot of pathogenesis related protein that is protecting the leaves or other part of the plant. What do you mean by the acquired resistance? Plant is able to
defend themselves against any attack except crown gall. है ना? That is they have क्या to बोलोगे acquire इसको? that after जैसे that they have to acquire that resistance by the acquired signal. मतलब they are activation of the response. They are able to activate the response against any pathogens. ठीक है? So that is called as the acquired response. Infection of. It is happening after the infection, so that's why it is called acquired. Acquired, हाँ, acquired. ठीक है? यहाँ पे एक्चुअल में दो तरह का रिस्पॉन्स होता है. ये सारा मिटा दूं? लिख लिया आपने सारा चीज? Yes. लिस्ट कर दूं? Yes. चलो मैंने फोटो खींच लिया है, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा. ठीक है? So what I'm saying, there are two type of response. One is the systemic and other is the local. इसको कहते हैं सार, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लार. ठीक है? And also there is a सार की तरह. हाँ बोलो. What happens in लोकल इंडक्शन होता है. लोकलाइज्ड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस कहते हैं. लोकलाइज्ड, हाँ बता रहा हूँ, सांस तो लेने दो. लोकलाइज्ड localized acquired resistance. ठीक है? टोबैको में ये देखा गया है कि whenever there is a pathogenic infection, so immediately पहले तो लार एक्टिवेट होगा, सार नहीं एक्टिवेट होगा. जैसे आपको मान लो ये कोई बंदा है, बंदा बंदी जो भी है, अब ये जा रहा था या जा रही थी रोड पे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया इसको. ठीक है? तो तुरंत तो एंटीबॉडी नहीं आएगी ना अटैक करने. यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स होगा? यहाँ पे लोकल रिस्पॉन्स होगा. कैसे? यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, म्यूकस होता है ना, वो इनको ट्रैप कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी डिफेंस या लोकल डिफेंस. और जो सेकेंडरी डिफेंस होता है वो एडवांस होता है, वो धीरे से होता है, धीरे धीरे होता है, स्लो. ये फास्ट होगा. इसी तरह से लार जो तुम पूछ रहे हो ना, लार इज ए फास्ट रिस्पॉन्स. लार इज ए फास्ट रिस्पॉन्स. जैसे कि वुंड में जो ब्लीडिंग टाइप का होता है, वो भी एक जैसे हमारा म्यूकस होता है, तो उसके लिए हाँ, लोकल रिस्पॉन्स. दिस इज ए लोकल रिस्पॉन्स. दिस इज ए लोकल. आज बस करें इतना, काफी हो गया. यस सर, बट कैन यू से जैसे कि हमारा म्यूकस होता है प्राइमरी डिफेंस का एक माध्यम जिससे हम लोकल रिस्पॉन्स कर सकते हैं. वैसे ही यहाँ क्या होता है सर लोकल प्लांट? आवाज आपकी थोड़ी दूर से आ रही है बेटे, थोड़ा सा. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि इन एनिमल देयर इज म्यूकस, तो लार में क्या होता है जो लोकल एक्वायर्ड रिस्पॉन्स? लाइसोजाइम्स होते हैं. लाइसोजाइम क्लियर आउट करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, है ना. और एसिड होता है, तो वो सारा मिलकर उनको न्यूट्रलाइज करते हैं. जब उसको फेल करेंगे, यानी कि क्या करते हैं कि देयर इज ए लाइसोसोम, तो लाइसोसोम अपटेक कर लेता है ना, खा जाता है, मतलब इस तरह से पैथोजन को. तो वहां पे ब्रेकिंग होती है बिकॉज ऑफ लाइसोजाइम. देयर इज ए फ्रैगमेंटेशन होगा. तो एमएससी, चूंकि एपीसी कहते हैं ना, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना. तो देयर इज ए लाइसोसोमल, तो यहाँ पे एमएससी 2 होगा या एमएससी 1 होगा. तो दे आर कैप्चरिंग
एंटीजेंस। तो MSc1 व्हेन देयर इज ए सॉलिड एंटीजन, इस पे तो मैंने पूरी बुक लिखी है, आप जितना मर्जी डिस्कस करो मेरे से। और यहाँ पे सॉल्युबल एंटीजन होगा, ठीक है ना। तो सॉल्युबल एंटीजन, तो दे आर गोइंग टू प्रेजेंट, एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे इसको बोन मैरो में प्रेजेंट करेंगे, एंड बोन मैरो इज गोइंग टू स्टार्ट बी सेल एक्टिवेशन। बी सेल एक्टिवेशन होगा तो बनेगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं, है ना, रीअरेंजमेंट। ये बहुत सारी जीन्स होती है इसमें, रीअरेंज होती है, और रीअरेंज करके जिस तरह का एंटीजन का स्ट्रक्चर है उस तरह से एंटीबॉडी बनेगी। So that's why this is a slow response, systemic response. This is a systemic response. इतना क्लियर है? यस सर। जो जैसे कि नीम बार्क से पहले के दिनों में बोन हीलिंग होती थी, वैसे ही अभी जैसे कि नीम बार्क से पहले पुराने जमाने में बोन हीलिंग होती थी, वैसे ही सर एक बीटर वाइन्स आता है ना, बीटर वाइन्स। हाँ सर, उसका पत्ता जो है उसका, वो भी तो सेम काम ही करता है ना? हाँ, उसको भी लगाते हैं बोन पे। हाँ सर, वो क्या, वो नीम बार्क की तरह सिमिलर वर्क करता है? हाँ, क्योंकि मम्मी लोगों को बचपन से लगाते थे कि मतलब कुछ भी हाथ खेलते खेलते हमारा कट गया तो मम्मी लाके पत्ता थोड़ा मल के हाथ में, फिर उसका रस जो भी वुंड है उसके ऊपर लगा देती थी, तो ठीक हो जाता था। That was really magic for us then, but वही लॉजिक ढूंढना है अभी। हाँ देखो, ऐसा है ना कि साइंटिस्ट हो ना, तो साइंटिस्ट है, दे शुड नॉट हैव एनी बाउंड्री। यस, दे शुड नॉट हैव एनी बाउंड्री। अगर आपको बाउंड्री है तो प्रॉब्लम है। व्हाई टू क्रिएट बाउंड्री? यस, वी कॉल इट हियर लौता पाता। ठीक है। तो क्या रेटिंग दोगे आज की क्लास को आउट ऑफ 10? 9। 9। आप कितना दोगे संप्रति? 9.5। वाह, ग्रेट। तो कल से हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, मिक्स ब्लेंडेड, इसको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग, है ना। समवॉट ब्यूटिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन बाय द पीपीटी एंड देन द कंप्लीट कवरेज ऑन द बोर्ड। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हम पढ़ने वाले हैं सिग्नलिंग। कल हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग ऑफ व्हाट? साइटोकाइन्स। उनकी जीन कौन है, कैसे सिग्नलिंग होती है, 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग पाथवे। सर ये टेजन जाइगस से हुआ, मतलब हाँ, टेजन जिगर में ही बेस्ट दिया हुआ है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे तो इट्स बेस्ट, उसमें समझ में आता नहीं। वहाँ बहुत सारे डायग्राम दिए हुए, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ओपाइन का कौन सा जीन बनाता है? TAT-C58, वो नोट कर लो। So what is the key component of this cytokine biosynthesis? This is DMAP. We haven't done this. DMAP. DMAPP, that is converted into the AMP. AMP से बनता है IEMP. This is the main step in the, मैंने बोल दिया वो चली गई तुम्हारी दोस्त संप्रति, सी गॉन। जैसे मैंने बोला कि नाउ इट्स ओवर। हमारा ओवर तो होता ही नहीं, हमारे ओवर होने का कहने का मतलब है आधा घंटा और रुको डिस्कशन गोइंग ऑन। शायद वो नहीं है तो उन्हें पता नहीं चला। चलो वो बात कर लेंगे संप्रति कि हाउ वाज द क्लास, व्हाट इज द फीडबैक, है ना। IPT gene is responsible for the biosynthesis of cytokine, and this is the
intermediate component. So this is the active cytokine. IPMP also called as the active cytokine. ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है. अब आप देखो, आप G18 पढ़ लिए, बाप पढ़ लिए, है ना, फिनाइल यूरिया पढ़ लिए, सारा कुछ पढ़ लिए, लेकिन इसमें से IPMP नहीं पढ़ा था. आपको लगेगा यार ये तो पढ़ाई नहीं, तो ये कैसे हो सकता है साइटोकाइन. बट एक्चुअली एक्टिव साइटोकाइन बायोसिंथेसिस से जो होता है वो ये है.